Assalamu alaikum friends, I am Muhammad Daud Kakar. Our today's important topic is about infinitive. Lesson 28, infinitive. Read these sentences. Number 1, I want to read. Number 2, they tried to find a book. The forms to read and to find are infinitive. The infinitive is the base of a verb often followed by to. इन दो सेंटेंसेस में टू रीड और टू फाइंड इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव वर्ब की बेस फॉर्म होती है जो कि अक्सर टू के साथ इनका यूज होता है. रीड दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को देखते हैं. टू प्ले इज फन. In the above sentence, the infinitive like a noun is the subject of the verb is. इस सेंटेंस में infinitive to play verb is का subject के तौर पे जैसा noun होता है यूज हुआ. Singers love to sing. In the above sentence, the infinitive like a noun is the object of the verb love. इस sentence number 2 में infinitive to sing ये noun की तरह verb love का object के तौर पे यूज हुआ. Sentence number 3, to respect our teachers is our duty. In the above sentence, the infinitive like a noun is the subject of the verb is. इस sentence में infinitive to respect noun की तरह verb is का subject है, but like a verb it also takes an object. लेकिन एक verb की तरह इसके साथ object का भी इस्तेमाल हुआ. Sentence number 4, she refused to obey the orders. In the above sentence, the infinitive like a noun is the object of the verb refused. इस sentence में infinitive to obey ये verb refused का object है, but like a verb it also takes an object. लेकिन ये एक verb की तरह object भी लेता है इस sentence में, the orders. Sentence number 5, many people desire to make money quickly. In the above sentence, the infinitive like a noun is the object of the verb desire. इस sentence में infinitive to make है, ये verb desire का object के तौर पे noun की तरह इस्तेमाल हुआ, but like a verb it also takes an object and is modified by an adverb. लेकिन ये verb की तरह इनके साथ object भी यूज हुआ है और adverb से modified भी हुआ है. तो infinitive को हम जानते हैं. It will be seen that the infinitive is a kind of noun with certain features of the verb, especially that of taking an object when the verb is transitive and adverbial qualifiers. In short, the infinitive is a verb noun. हम मुख्तसरन कह सकते हैं कि infinitive verb noun है. ये एक ऐसा verb है जो कि object भी लेता है और अगर वर्ब इसका ट्रांजिटिव हो तो ये ऑब्जेक्ट भी लेता है और एडवर्बियल क्वालिफायर्स भी लेता है. तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब है जो नाउन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है. The word to is frequently used with the infinitive but is not an essential part or sign of it. To जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले इन्फिनिटिव्स के साथ यूज होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि यह हमेशा इस्तेमाल होता हो. अगर ना भी इस्तेमाल हुआ हो कभी कभी तो फिर भी इन्फिनिटिव अपना रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सिट हेयर. नंबर 2, मेक हिम स्टैंड. इन दोनों सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव वर्ब का यूज विदाउट टू हुआ है. हम यूज ऑफ द इन्फिनेटिव को थोड़ा सा देखते हैं. द इन्फिनेटिव में बी यूज्ड लाइक अ नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये एक नाउन के तौर पे वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले इज फन. इस सेंटेंस में टू प्ले वो सब्जेक्ट के तौर पे बिल्कुल नाउन की तरह वर्ब इज का सब्जेक्ट यूज हुआ है. दूसरा यूजेज इन्फिनेटिव का, द इन्फिनेटिव में बी यूज्ड लाइक अ नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब. अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो फिर इन्फिनेटिव वहां पे नाउन की तरह बतौर ऑब्जेक्ट भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले पियानो. यहां पे देखें वर्ब ट्रांजिटिव है और इन्फिनेटिव बतौर ऑब्जेक्ट यूज हुआ. नंबर 3, The infinitive may be used like a noun as the complement of a verb. ये noun की तरह verb के complement के तौर पे भी
यूज होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या है, यह हमने पहले लेसन्स में डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू रीड। यहां पे इन्फिनेटिव बिल्कुल नाउन की तरह इस सेंटेंस में वर्ब का कंप्लीमेंट के तौर पे यूज हुआ। The infinitive may be used like a noun as the object of a preposition. ये नाउन की तरह एक preposition के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। The speaker is about to begin. यहां पे infinitive preposition के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। The infinitive may be used like a noun as an objective complement. ये objective complement के तौर पे भी यूज होता है जैसा नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम गो। द इंफिनेटिव इज आल्सो यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब यूजुअली टू एक्सप्रेस पर्पस। ये उस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अमूमन कोई मकसद एक्सप्रेस कर रहा, बयान कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड टू मीट माई ब्रदर। The infinitive is also used to qualify an adjective. एक adjective को qualify करने के लिए भी infinitive का यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। Apples are good to eat. यहां पे adjective good को qualify किया infinitive to eat ने। The infinitive is also used to qualify a noun. Noun को qualify करने के लिए भी infinitive का यूज करते हैं हम। दिस इज नॉट द टाइम टू सिंग। यहां पे नाउन टाइम को क्वालिफाई किया इन्फिनेटिव टू सिंग ने। द इन्फिनेटिव इज आल्सो यूज्ड टू क्वालिफाई अ सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू टेल द ट्रूथ आई क्वाइट फॉरगॉट माई कमिटमेंट। यहां पे इन्फिनेटिव पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है इंग्लिश में, और इन्फिनेटिव विद टू और समटाइम्स विदाउट टू भी आता है। और इन्फिनेटिव का यूज कैसे हम करते हैं इस लेसन में हमने ये जाना।